Hi everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. and in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंडरिटन नोट्स है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज हैंडरिटन नोट्स so that you can get good marks in your exams. In this video, we will discuss important question of IGNOU MBA. Even before this, I have made videos on important question, but then those were chapter-wise videos of important question because that time was new MBA and there were changes in the syllabus and study material. Then we made videos on the basis of 10 years. So now the exam has been conducted many times. So now we have again analyzed the complete syllabus and made a PDF, and in this PDF we have tried to keep a few questions as soon as possible because you people have demanding that we should start a series with less questions. So I have again brought important questions which are very important for your exams. So without wasting any time, let's get started. आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MMPC 015 का, जो कि है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजमेंट डिसीजन. अगेन जैसे आपका MMPC 005 था वैसे ही आपका MMPC 015 है. सेम ये दोनों सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा सेम पढ़ते हैं और पूरे MBA में सबसे हार्ड MMPC 05 और 15 ही है. इससे पहले मैंने फर्स्ट सेम के फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं. उसके बाद मैंने MMPC 08 भी अपलोड कर दिया. उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं MMPC 015. तो प्लीज़ इनके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आप करके जाना, नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट MMPC 05 और MMPC 015 में ही अटक जाते हैं. तो वीडियो को अच्छे से देखना. तो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं. इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च प्रोसेस एंड व्हाट आर द सीरीज ऑफ स्टेप्स नेसेसरी टू इफेक्टिवली कैरी आउट रिसर्च डिस्कस. तो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो आपके 10 ईयर्स में या फिर जहाँ से आपका न्यू MBA स्टार्ट हुआ है वहाँ से आए. इन PDF को बनाने के लिए हमने पूरा 10 ईयर्स का और अभी तक जितने भी MBA के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं सबका अच्छे से एनालाइज़ किया, उसके बाद ही हमने ये PDF बनाई है. इससे पहले जब चैप्टर वाइज वीडियोस बनाई थी उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट को A ग्रेड चाहिए तो काइंडली वो वही प्लेलिस्ट फॉलो करें जिनमें चैप्टर वाइज है. और इनमें हमने कोशिश की है 25 to 30 क्वेश्चंस रखने की, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको कम से कम करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस डेटा कलेक्शन मेथड एंड डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. अगेन आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपका MMPC 05 में भी आता है. जो आपने MMPC 05 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसका आधी बुक आपकी MMPC 015 में है.
ठीक है, तो ये क्वेश्चन MMPC 05 में भी इंपॉर्टेंट बनता है और 15 में भी। इवन MMPC 05 में ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है और 15 में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। देन उसके बाद व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चनरीज एंड डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग ऑफ अ क्वेश्चनरीज। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, MMPC 05 में भी आया है और 15 में भी है ये। देन उसके बाद है व्हाट आर द वेरियस पैरामेट्रिक टेस्ट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और जिन भी स्टूडेंट ने मेरा MMPC 05 का जो हैंडी टेन नोट्स है वहाँ से परचेज़ किया है, तो उनमें बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं जो आपके MMPC 015 में भी ऐड ऑन होंगे। तो जब आप MMPC 015 पढ़ोगे तो जो मेरे MMPC 05 के जो नोट्स है वो दोनों कंबाइन करके आप MMPC 015 पढ़ना, तब आपकी बहुत हेल्प होगी। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय इथिक्स इन रिसर्च एंड डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इथिक्स। जिससे उसके बाद है आपका 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रिसर्च, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, डिस्कस द रोल ऑफ रिसर्च इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बस इतने ही क्वेश्चन हमने रखे हैं MMPC 015 में। 20 क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग एंड डिस्कस द आइडिया एंड प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफाई, हाउ कैन यू स्ट्रैटिफाई सैम्पलिंग मेथड टू इंक्रीज प्रिसिशन। तो अगेन ये 005 में भी आया है, मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है। अगर आपने 005 अच्छे से पढ़ा है तो आप MMPC 015 अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देन उसके बाद है 21, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड कंक्लूसिव रिसर्च, डज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑलवेज लीड्स टू कंक्लूसिव रिसर्च, एक्सप्लेन योर परसेप्टिव्स। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद लास्ट में आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। हमने हर PDF में जिन जिन सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स आते हैं हर PDF में हमने शॉर्ट नोट्स डाले हैं नीचे, और सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हमने 10 ईयर्स से और जितने भी MBA में अभी आ चुके हैं वो सारे के सारे हमने डाले। तो सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें chi-square टेस्ट, देन उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम, द सिमेंटिक डिफरेंट स्केल्स, देन उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स, प्रूफ रीडिंग। तो ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सारे के सारे करने हैं। सो देखिए, अभी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपने 2 चीज़ें इसमें नोटिस की होगी। फर्स्ट जो है इसमें हमने प्रायोरिटी वाइज नहीं रखे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम बनाने वाला होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, वो क्वेश्चंस को कभी भी ऊपर नीचे कर सकता है, तो प्रायोरिटी वाइज रखने का कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इस बार आएंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो प्रायोरिटी वाइज इसीलिए हमने नहीं रखा है। उसके बाद सेकंड है, हमने इसमें आंसर नहीं लिखे हैं। आंसर इसमें हमने इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि आंसर जो भी लिखते हैं वो डायरेक्ट इग्नू की बुक से लिखते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, और आप उन लैंग्वेज को याद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन रूम में जब बैठोगे तो आप पूरा पजल हो जाओगे और एक भी लाइन आपको याद नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा है आप YouTube की हेल्प से पढ़ो और अपने नोट्स खुद बनाओ, या फिर आप लोग हमारे हैंड रिटन नोट्स पे परचेज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही उनमें लिखे हुए हैं, बाकी अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम इनमें आंसर लिख देते तो आप डायरेक्ट इनसे पढ़ने की कोशिश करते, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता, वो आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाके भूल जाते। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ते हो, आंसर खुद से ढूंढते हो, तो आपका 80 to 90% जो प्रिपरेशन होती है वो यहीं पर हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो यूट्यूब से कर सकते हो, बाकी अगर आप चाहो तो हैंड रिटन नोट्स परचेज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया MMPC 015 का। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इग्नू MBA जर्नी। आप इन प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और अगर आपको ये PDF बाय करना है तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको मुझे DM करना है, और ऐसे ही आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए भी मुझे टेलीग्राम पे DM करना है। देन उसके बाद आपको ये PDF और हैंड रिटन नोट्स दोनों ही मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों PDF को और हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप पास तो आराम से हो जाओगे, और अगर आप अच्छे से फॉलो भी करते हो इनको तो आपका A और B ग्रेड तो कहीं भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे MMPC 017 का। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos.
और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.